नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम और वणकम and what is it? Konnichiwa in Japanese, ni hao in Chinese, Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa and the continent of Africa, whoever speaks Swahili. Whoever speaks Swahili, all over East Africa, right Yes. down to South Africa. The Fantastic. entire continent of South Africa, the continent of Africa, as you say, a beautiful continent. Absolutely. Fantastic. So Pradeep ji, the point is at the moment, finally the election is picked up and finally we are looking at a situation where you had the Prime Minister at Shivaji Park yesterday and you had all the major leaders of the India Alliance at the Bandra Kurla complex, very, very close to our office. And some of the other, since polling is on Monday in Mumbai, perhaps the India Alliance campaign has finally taken off. That's what I feel, because it's very focused now. That's what I think. What do Yes, you sir. think? It was a combination of all the original leaders. Yes. Arvind Kejriwal was there, Sharad Pawar ji was there, Uddhav Thackeray ji was there, Congress, all the top Congress leaders were there. ये ओरिजिनल हर चीज दिख रहा है और जो मोदी साहब नकली बोलते हैं इनको we find that except Prime Minister Modi, everybody else was a broken factions where the Shivaji Park rally was there, because there you don't see the original stuff, but Prime Minister says this is the original stuff and this is, but वहाँ पर हमने now this is something what the people, अभी लोग इसको कैसे देखेंगे, because here we found everybody who's original party leaders. You know, even if Tejasvi didn't come yesterday, we had all the leaders who have come time and again together. All are original and all are the leaders in their own right, who have made the organization. Organization को जिसने अपने हाथों से खड़ा कर दिया है, ये लोग एक साथ थे. Now that probably is going to be the difference. Will Prime Minister alone, Modi alone carry the charisma, और उनका खुद का charisma, will it going to take it, सबका नैया पार करा देगा, या this combination of leaders coming together, this unity हमने कभी नहीं दिया. It reminds us of the Jai Prakash movement probably, where people, maybe it reminds us of 1977. yes, where people came, दिल से लोग साथ में जुड़े थे, दिल से लोग साथ में आए थे. So let's go and talk to Mr. Rakesh Shetty and what he has to say, because Rakesh Shetty Saab has got his ear to the ground, has been among the people and has been Yes. campaigning all over the place, and he would know what's really happening. Rakesh Shetty Saab, namaskar. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार. How have you been, sir? Meeting you after a long time. Long time. You've been very, very busy. You've really been Due very. to election rallies and all, I was a bit busy. Gee, But we are all around you with media. you're very close to our office. Yeah. So, how did it go yesterday? I mean, what is the impact in your opinion? Yesterday's rally, the vibe there, if you have seen, it was a mega show and people were interacting with the leaders. And if you see, unlike the 2014 or 2019 election, 2024 will be a different election altogether, because here we can see different political parties have come together under and formed the India Alliance, and we are going to give a very good fight to NDA and Narendra Modi. And if you see 14 and 19, Narendra Modi ji was successful in setting up one narrative and running the entire campaign with that one narrative. But in 2024, he has failed. He has been shifting his goalpost here and there. Sometimes he talks about against Muslims. Sometimes he says, he gave an interview to one leading electronic media, national channel, and he says, अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूँ तो मेरा राजनीति खत्म हो जाएगा. We were saying here, just 24 hours, you had said that Muslims you were accusing कि उनके ज्यादा बच्चे होते, एक भैंस उनको दिया जाएगा, and the very next day you are saying कि मैं कभी
हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है. It was shocking. Once in the entire campaign, once he openly came up and said कि राहुल गांधी should disclose कितना अदानी एंड अंबानी ने आपको टेम्पो भरकर पैसे भेजा है. मतलब we were finding it very funny how Narendra Modi, who is such a organized and a very good orator, has changed completely, and he doesn't know what to do, what narrative to set, and what to say, what not to say. But that is absolutely true because the narrative has been changing right from the Because- first phase of polling, then the second phase, third phase, fourth phase. That's been Because- changing. Why is that? See, the major reason is inflation is one reason. Second is unemployment across the country. And third, if you see कि Narendra Modi has promised lot of things to the people. Like for example, 2 crore नौकरियां he had said. In 10 years it should become 20 crores. But he was unable to deliver it. People Gee. talk about like Maharashtra CM went to Davos and signed a agreement, but on ground we can't see anything happening. No investment coming. Even if you see pan India, we don't see anything happening. Yeah, in terms of infrastructure, I would like to tell your audience today. Yes. We talk about roads and infrastructure, but go to any road, you will see there is a toll. There is this all roads. Wherever you're seeing the luxurious highway, you go to Noida, you go towards Gurgaon, you go to UP, you come towards Chandigarh. Today you talk about Atal Setu. Also, whenever you step into that road, there is a toll. That means these roads are created or constructed by a private player. It comes under PPP model. That means a private person has invested on the road and he is going to collect toll from the whoever is using that road for next 50 years. So this money, this investment have come from the private player. So what infrastructure you are talking about? If I have to get inside any road, if I have to pay a toll, then what is government of India doing? I can't take my vehicle to any road, and wherever there is no toll, you just see the condition of the roads because those roads. Shetty Saab, but he blames you. Prime Minister Modi in yesterday's speech was blaming the MVA rule. He said, हमने हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाना चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो रेल हो, कॉरिडोर हो, अलग अलग शिपिंग प्रोजेक्ट्स हो, हर प्रोजेक्ट को एमवीए ने जिस प्रकार सुनेगा लटकाया, अटकाया, भटकाया, सब प्रोजेक्ट को लटकाया, अटकाया, भटकाया, for whatever reasons, he wants to bring Mumbai का गौरव back. इसलिए लोगों से बोले, that's why. Now this is what he says. He says you are responsible for the entire delay, bullet train ho, metro rail ho, every project including the Atal Setu. See, now let me come to first. We had opposed the metro car shed. We have never opposed metro. We have just said the car shed which you are going to start in Goregaon, RML colony, hundreds and thousands of trees need to be shredded out. That we as individual, as human beings, have some responsibility towards the nature. That is the only request what we were talking about. Secondly, Narendra Modi said he wanted anything to people to invest in Mumbai or Maharashtra. This is a completely false statement because International Financial Services, which was next to your office at VKC, has been transferred to Gandhinagar. In Palghar area, we had a military base there. That has been shifted to Ahmedabad. You talk about Foxconn, they have gone to Gujarat. There are lists of industries who were supposed to be established in Mumbai or Maharashtra or around Mumbai has been taken off by Gujarat. What is he talking about? People of Maharashtra, there is an anger against Narendra Modi, against BJP. We are very much an industrial friendly state. But deliberately Narendra Modi and Amit Shah shifted, asked his industrialists to shift their base to Gujarat. Number one. Number two, that way he has treated Shiv Sena. I can see on your screen Uddhav Thackeray.
Now everyone know that in his last days, Shiv Sena Supremo Balasaheb Thackeray, there is a video clip. He clearly says, after me, the people of Maharashtra should take care of Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray. He has given a clear mandate to Uddhav Thackeray. Who is Narendra Modi to challenge Balasaheb Thackeray? Because Balasaheb Thackeray, this Shiv Sena is built by him, created by him. All Shiv Sainik belongs to him. He has handed over the passion to Uddhav Thackeray. But Narendra Modi openly says that this is Nakli Sena. This has not gone well with Shiv Sainiks. Secondly, third point is about Sharad Pawar. Sharad Pawar, such a senior leader, we all party, across party line, people look up to him with lot of respect. We all know what all he has done for this country and for Maharashtra. You talk about Sharad Pawar, you gave a statement saying that this is Bhatakti Atma. That means Atma is something after death it comes out. So what is this? We never expect that our Prime Minister should go down during election with this language. शेट्टी साहब आगे जाके मोदी जी बोल रहा है कि देखो हमने आर्टिकल 370 को कब्रिस्तान में दफनाया, आर्टिकल 370 के दीवार को कब्रिस्तान में दफनाया, हमने 3 तलाक को तलाक कर दिया, 3 तलाक को तलाक कर दिया, 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आप 22 साल लटकाए वो तुरंत उन्होंने फटाफट कर दिया, 10 साल में 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया। शेट्टी साहब 370 आपने हटाया, जम्मू एंड कश्मीर में 6 सीट थे। आज भारतीय जनता पार्टी का हिम्मत नहीं है, जिस जम्मू कश्मीर से 370 हटाया वहां से एक भी कैंडिडेट आप नहीं लड़ा रहे हो। आपको तो लड़ाना चाहिए। और आप जो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे और हमें समझा रहे कि आपने मुसलमान महिलाओं को अधिकार दिया है। 4 दिन पहले उसी मुसलमान औरतों को आप तो गालियां दे रहे थे कि मुसलमान औरत ज्यादा बच्चे पैदा करते। तो क्या मतलब है? एक बार आप बोलते हो कि हमें जस्टिस दे रहा हूं, दूसरी बार उसी महिलाओं का, माताओं का आप अपना मान कर रहे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप 370 की बात कर रहे, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे। मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी अपने जो बीवी है यशोदाबेन, ना इनको तलाक दिया है, ना ये एडमिट करते कि ये मेरी बीवी है। आपने अगर उनको छोड़ दिया तो उनको से तलाक तो दीजिए, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की बीवी को जो कुछ भी राइट्स होता है वो राइट्स तो उनको दीजिए। आज यशोदाबेन को अपना पासपोर्ट रिन्यू करने गई क्योंकि हस्बैंड सिग्नेचर नहीं कर रहा है। शी इज डिप्राइव्ड फ्रॉम हर राइट्स। यशोदाबेन को अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करने दे रहे। तो ये मतलब है कि आप अपने मैरिटल स्टेटस को, अपनी वाइफ को आप न्याय नहीं दे रहे। आप पूरा मुसलमान की जो औरतें हैं उनका ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। But Rakesh Shetty Saab, this is something which I want to ask you. Very rationally speaking, is the BJP, has it been very disturbed by the very focused campaign carried out by the Congress and the India Alliance? क्योंकि मैंने बड़े सालों के बाद देखा है कि इस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, डीके शिव कुमार साहब, बाकी सब लोग जो हैं मतलब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। हैज द कांग्रेस कैंपेन रियली डिस्टर्ब्ड द बीजेपी? मुझको ऐसा लग रहा है। नहीं, ये मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। जब आप परीक्षा में पूरा साल पढ़ते नहीं हो और आखिरी के दिन में आपको जब परफॉर्मेंस प्रेशर आता है तब आपकी स्थिति ये होती है। ये इलेक्शन मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं है। दिस इलेक्शन इज बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इट, पीपल ऑफ दिस कंट्री। 10 साल आपके पास थे। नरेंद्र मोदी जी चाहते तो अजित पवार हुआ, हसन मुशर्रफ हुआ, छगन भुजबल हुआ, अशोक चौहान, सबको जेल भेज सकते थे। मगर आपने 19 के 24 के बीच में आप जिन लोगों को 14 से 19 के बीच में करप्ट पॉलिटिशियंस बोल रहे, उन सबको आपने ले लिया। आज खुद भारतीय जनता पार्टी का कैडर, आरएसएस का कैडर बोल रहा है
कि ये क्या हो रहा है। जिनके विरुद्ध हम 15 साल लड़े, 20 साल लड़े, उन्हीं को आपने बीजेपी में ले आए, हमारे कोलिशन में ले आए, और आज हमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के जो एक्स लीडर्स है उनको लिए काम करना पड़ रहा है। सो मुझे, और ओवरऑल देश में आप देख लीजिए, दिल्ली में आपको अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की जरूरत नहीं थी, आपका वहां पे परफॉर्मेंस ठीक था, आपने जेल भेज दिया। अब वहां पे 4 सीट हमारी आ रही है वहां पे। झारखंड के अंदर आपको हेमंत सोरेन को जेल भेजने की जरूरत नहीं थी, वहां पे वो काम कर रहे थे, आपके लोग भी काम कर रहे थे। अब क्योंकि आपने जेल भेजा, आपका वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। कलकत्ता में इनको सीट्स नहीं मिल रही है। बिहार में जिस नीतीश कुमार को अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू के साथ आगे कोई अलायंस नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं, और कुछ ही दिन के बाद आपके गठबंधन में आ जाते। तुष्टिकरण, शेट्टी साहब, तुष्टिकरण, अपीसमेंट पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस हैज डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री। नरेंद्र मोदी जी उदाहरण दे रहे हैं, बोले क्या क्या गारंटी लेंगे एनसीपी या उद्धव सेना कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में बोलेंगे नहीं चुनाव के बाद? फॉर एवर ही इज ऑलवेज बीन क्रिटिसाइजिंग वीर सावरकर। तो कौन गारंटी लेगा राहुल गांधी जी के? और उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व छोड़कर राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस के गोद में बैठे। नेहरू जी के उदाहरण दे, नेहरू जी ने जो चित्रों वाले संविधान जो 1000 साल के हमारे विरासत था, नेहरू जी ने इसको अलमारी में बंद कर दिया। नेहरू जी ने बंद। तो यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, तुष्टिकरण, एंड दैट हैज बीन बैड फॉर दिस कंट्री। पुष्टिकरण उसे बोलते हैं जब आप देश के सभी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, उसको पुष्टिकरण कहते हैं। अगर आप हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काते हैं, उसको पुष्टिकरण कहते हैं। हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, मगर आप देखिए बीजेपी, आरएसएस के लोग, कुछ वो झोला छाप जो स्वामी लोग हैं, खुलेआम हिंदू राष्ट्र बात कर रहे हैं। कितना इंसल्टिंग है। आप इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को चैलेंज कर रहे हैं। और इस इलेक्शन में मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ने नोटिस किया कि नहीं किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी ऊपर से आएंगे तो भी वो इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आप इतना गलत बात कर रहे हैं, आपका इतना हिम्मत है। हमने कभी नहीं कहा कि दामोदर दास मोदी भी आएंगे तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलने को हम नहीं देंगे। तो ये कितनी गलत बात है। राकेश शेट्टी साहब, एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है यूपी से, स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, पहली बार देखा गया है कि एक बार फिर जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ करता था, ब्राह्मण मुसलमान दलित, ये विनिंग कॉम्बिनेशन कांग्रेस का था, और जिसकी वजह से तकरीबन 55 साल आप लोगों ने राज किया उत्तर प्रदेश पे। आज वापस वही कॉम्बिनेशन आ रहा है, और उसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है, एक ओबीसी और ठाकुर राजपूत। और ठाकुर राजपूत समाज ने कोई 6 महापंचायत लिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाले, क्योंकि उनके कोई पुरुषोत्तम पाला जी करके हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, अभी भी हैं, और वो राजकोट से खड़े हैं, और उन्होंने राजपूत महिलाओं के बारे में कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए थे। उनकी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि भाई इसको टिकट ना दिया जाए। अमित शाह जी अड़ गए, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, यही खड़े होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नाउ इवन द राजपूत ठाकुर वोट इज प्रोबेबली कमिंग टू यू, और एटलीस्ट नॉट गोइंग टू द बीजेपी। मतलब हो सकता है कि your performance in Uttar Pradesh may be similar to your performance in 2019 when you won 21 seats. Of course, this time you're only contesting 17. Have you got this from the ground, sir? Rakesh Shetty sir? This issue is there, and not only from Uttar Pradesh, राजस्थान में मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों की भीड़ इकट्ठा गई एक समुदाय की, क्षत्रिय समाज की, उन्होंने खुलेआम बहिष्कार डाला है भारत। जी जी जी, पे बेवकूफ बनाए गए। एक सिंपल है, यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, यहाँ पे आपने देखा होगा एसटी बस के एक आंदोलन चल रहा था जी, और खुद हमारे देवेंद्र फडणवीस जी गए थे और कहा था कि ये उद्धव ठाकरे जी से नहीं होगा, मैं जैसे ही आता हूँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करूंगा और उनको सैलरी हाइक दूंगा। और उन्होंने टाइमलाइन भी दी थी, उन्होंने कहा था मुझे 3 हफ्ते का टाइम दीजिए। आज कितना हो गया, 2 साल हो चुका है। दो साल से ऊपर हो गए सर, अभी तक नहीं हुआ। दंगल समाज का आरक्षण रुका हुआ है,
यही देवेंद्र फडणवीस उनके पास जाते थे, गुलाल लगाते थे और कसम खाते थे, जी, नहीं करते। इसमें कोई दो राय नहीं, करेक्ट। मराठा आरक्षण का भी सेम चीज है। ये लोग का मतलब काम करने का तरीका ऐसा है, आपको जो चाहे वादे करे, मगर जैसा सत्ता में आते तो इनके चुने हुए बिजनेसमैन है, उनका काम छोड़कर किसी का काम नहीं होता। लेकिन राकेश शेट्टी साहब, एक और चीज हुई है, आपकी बात में शायद दम है, जो आप बोल रहे हैं ना कि इट इज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। वो क्या है कि करनी सेना एक ऐसा संगठन है, करनी सेना राजस्थान से, वो टोटली प्रो बीजेपी, प्रो विश्व हिंदू परिषद, प्रो बजरंग दल, उस किस्म का संगठन है। करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो परसों अमेठी पहुंचे और उन्होंने एक ठाकुर राजपूत सभा का उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने सबसे कसम दिलवाई कि तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे। ये कैसे हो गया? हाउ इज दैट हैपनिंग? I mean, I really would love to know. Have you done something or is it happening on its own? नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज मैं आपको राहुल जी को जितना मैं जानता हूँ, जितना मिलता हूँ, वो अगर कोई चीज कर सकते हैं और सही है तो सही बताएंगे। अगर उनका फायदा भी होगा और राहुल जी को आप बोल दोगे ना कि ये मन से बोल दीजिए, अपने को फायदा होगा, अगर वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं बोलने वाले, भले उसमें कितना भी नुकसान हुआ। आपने राहुल गांधी जी को आपको ये समझना पड़ेगा, आज हो क्या रहा है ना कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहुत सारा उम्मीद दे दिया। सिंपल बोलता हूँ, ब्लैक मनी आने वाली थी, 15 लाख मत दो, मगर आप वो 150 लोगों का नाम तो रिलीज करो जो आप कहते थे। आप 2013 में ये कहते थे कि मैं 150 लोग हैं जिनका ऑफशोर अकाउंट्स है और हमें फर्जी लिस्ट दिया जाता था। सोनिया गांधी का इतना पैसा है, राहुल गांधी का, इफ यू रिमेम्बर the so-called Panama Papers. बराबर है। So where is those paper? Where are the names? Why? Yeah, I would love to know myself. Why there was no investigation? That's right. मैं आपको बोल रहा हूँ करनी सेना छोड़ दीजिए। जी। मैं आपको बात कर रहा हूँ बीजेपी का कोर वर्कर और आरएसएस का कोर वर्कर। You are sitting in Mumbai, we are in Maharashtra. क्या आरएसएस के लोगों को अच्छा लगेगा कि वो आज अशोक चौहान जी के नेतृत्व के अंदर नांदेड़ में काम कर रहे हैं? अजित पवार को वहां पे बारामती के लिए उनको झंडा उठाना, वो भी एनसीपी का, कैसे लगता होगा इनको? यही हसन। But the same thing can be said for you also, sir. The same thing can be said for you also. Your biggest enemy in Delhi and in Punjab is the Aam Aadmi Party. The man we are seeing right now on your screen, on the screen is Mr. Arvind Kejriwal. He has decimated the Congress, destroyed the Congress totally in Delhi, and has been responsible for the defeat of the Congress in Punjab. So the same thing applies to you as well. Correct. But see, Aam Aadmi Party was a new party, and you are right. They have called us corrupt in 2013-14. If you remember, yes, it was Anna Hazare and Arvind Kejriwal, because of whom we have lost 2014 election very bad. If that Andolan was not created, we would have lost, but not so. The numbers would not be 40. I have a different view on this, sir. Rakesh Shetty Sahab, if you had not taken that campaign seriously, you would not have lost so badly. You took it seriously. You made the mistake. No, I am coming to it because there was some RSS people also involved in yes, that. they were. Sir, उस आंदोलन में मैं तो फिर बोलता हूँ, हम तो गए रामलीला ग्राउंड पे, सारे जो संघ के कार्यकर्ता थे, कौन था वहां पे? सब आरएसएस के लोग थे। सर मैं बता रहा हूँ, बादाम दिया गया था। मैं खुद उस आंदोलन में गया तो बादाम, तब मैंने बोला कि अगर इसमें बादाम दिया जा रहा है तो मतलब 100% इसमें आरएसएस का हाथ है। और आई टेल यू वन मोर थिंग, जिस सोनिया गांधी को अरविंद केजरीवाल जी पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, जब वो जेल में थे, आपको याद करा रहा हूँ, दिल्ली में रैली हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी बैठी हुई थी जी। सोनिया गांधी was kind enough to meet her, to talk to her and extend our support. And yes, she was. You are very much correct कि आज लोकसभा में, दिल्ली में हो या पंजाब में, आम आदमी पार्टी is ultimately taking our space. Yes, we very well understand that. One second, Pradeep ji, one small thing. But to move on from there, at the moment you are alive and you seem to be working very well. Let's be very clear. On that there is no doubt. लेकिन सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, something which is very emotional. I saw it today, so which is why I am asking you. आज सोनिया जी ने
रायबरेली में एक सभा को संबोधित किया. She is ill, let's be very clear. In spite of that, she went there. And she said, and this is worth hearing, मैं राहुल को आपको सौंप रही हूं. तो पर I saw people crying in the crowd. आप बताइए सर, ये क्या, ये इमोशनल कनेक्ट क्या है? ये इमोशनल कनेक्ट है, ये है कि बिकॉज आप जानते हैं कि सोनिया जी का वो सीट था और सोनिया जी का एक नाता रायबरेली और अमेठी दोनों के साथ था. बट रायबरेली में मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आपको पता है कि 15 साल महाराष्ट्र में हमारा कांग्रेस का यहाँ पे शासन था सर, 99 से लेकर के 2014 तक. मैं आपको सिर्फ एक नंबर में, वहां पे जब रायबरेली गया था, वहां पे मैं डॉक्टर एसोसिएशन बना हुआ तो मैं गया, उसमें करीबन 180 एमबीबीएस डॉक्टर्स थे और 24 पीजी लेवल, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. जी, पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस. और मैं जब उनसे बात कर रहा था, वो सब ने कहा कि बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर बने हैं. मैं बोला कैसे? तो यहाँ पे डीवाई पटेल कॉलेज था, भारतीय विद्यापीठ था, सब कॉलेजेस था. सोनिया जी खुद ने इनसे बात करके यहाँ पे एडमिशन करवाते थे एमडी का और एमबीबीएस का. आपको पता है गरीब परिवार के बच्चे अमेठी में अगर एमडी बन रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है. एंड महाराष्ट्र में आके, मुंबई में आके ये बच्चे पढ़े और ये कोई वेल टू डू फैमिली नहीं था सर, सब बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब बच्चे थे. बिकॉज मैंने उनको पूछा कि महाराष्ट्र मुंबई आप आए पढ़ने, कैसा हुआ? बोला नहीं, ट्रस्ट हैज टेकन केयर ऑफ. तो मतलब ये तो मैं एक बता रहा हूँ और मैं आपको, और वो अमेठी में तो संजय गांधी हॉस्पिटल बंद करा दिया सर स्मृति ईरानी जी ने. ये तो बहुत ही गलत ये है कि स्मृति ईरानी ने वो बंद कराया और कुछ दिन के बाद वहां की जनता ने उसका विरोध किया. जी, किया. और आज जो स्मृति ईरानी के सामने जो कैंडिडेट है वो करीबन 35-40 साल से अमेठी में काम कर रहे. 41 years. बिकॉज वो राजीव जी के लिए भी काम करते हैं, मैं पर्सनली उनको मिला हूं. और ये स्मृति ईरानी के लिए ये कोई केक वॉक नहीं रहेगा, वो बहुत गलत फहमी में है. बिकॉज प्रियंका और राहुल जी कंटेस्ट नहीं कर रहे, उनको लग रहा है ये बहुत आसान होगा. You know, Shedi साहब, the main problem, अमित शाह जी, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि CAA, 14 refugee families have been given the certificates. They are citizens of this country now. Now, मोदी साहब का जो डायलॉग था कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो CAA को हटा सके. And uniform civil code is there. Amit Shah has clearly said that this is the BJP manifesto और ये implement होगा. While this is going to be implemented, no personal laws are going to be there. Everything is going to be eliminated. शेडी साहब, ये vital issues है ना, राष्ट्रवाद, nationalism. See, मुझे राजीव जी आप कितने बड़े घर में रहते हैं मुझे पता नहीं, मगर मैं अचानक से आपके घर पे अनइनवाइटेड 10 लोगों को भेज दूं, 1-2 दिन तो आप क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से उनका ध्यान रखोगे, मगर आप देखोगे कि आपको ऑफिस आने में लेट हो रहा है बिकॉज वो आपका ही रिसोर्स यूज करेंगे, आपका किचन यूज करेंगे, आपका वॉशरूम यूज करेंगे, आपकी गाड़ी यूज करेंगे, आपके सामान यूज करेंगे. कल नरेंद्र मोदी जी राज ठाकरे जी के साथ, ये राज ठाकरे जी वही है जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को मार मार के ऐसे भगाया. तो नरेंद्र मोदी जी पहले राज ठाकरे से तो पूछ लो कि मैं ये लेके आ रहा हूं. मतलब राज ठाकरे बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ पे काम करने नहीं दे रहे. यू आर सेइंग पाकिस्तान से लोग आएंगे, हिंदू अफगानिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, तो उनका हालत क्या होगा? और आज यहाँ के बच्चों को जॉब नहीं, आप 40-50 लाख बाहर से लोगों को लेके आओगे तो क्या होगा कि ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? आज ही आप सबको 80 करोड़ लोगों को ही क्लेम दैट ऑपरेशन दे रहे हो, तो क्या होगा इसका? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स खुद कर रहे हैं. UCC, Uniform Civil Code, will be implemented. Sheri Saab, he says that was not, that's a part of the constitution. See, there is already criminal law is common. Civil code, what is uniform civil code?
आई एम अ हिंदू, आई विल फॉलो वॉट एवर हिंदूज में हमारे इंसिस्टर्स ने जो भी है, मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ और हमारे इनहेरिटेंस का, यही 3 चीज है। मुस्लिम्स अपना वो पर्सनल लॉ जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिस्ट है वो अपना करेंगे, क्रिश्चियंस अपना करेंगे। इनको क्या करना है, सबको सफेद शर्ट और सबको हाफ चड्डी पहनाना है इनको, आरएसएस वाले। सर आपको शेट्टी फुल साहब, पैंट हो गई। आपने राज ठाकरे जी का जिक्र किया। राज ठाकरे जी ने कल सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा कि अपीसमेंट ग्रेटेस्ट एग्जांपल वाज राजीव गांधी एक्टिंग on Shah Bano case. That was a classic case of appeasement when you overturn the court judgment for maintenance. बोले कि ऐसे appeasement, this is called appeasement, तुष्टिकरण, जो बार बार मोदी जी कह रहा। तो राज ठाकरे जी तो आरोप आप पर लगा दिया। The classic case of appeasement lies in Shah Bano case where Rajiv Gandhi decided against the interest of the state. See, शाह बानू केस में जो हुआ, later राजीव गांधी also know that जो हुआ गलत हुआ है शाह बानू के साथ और ही रिग्रेटेड फॉर इट। उसके बाद राहुल जी को भी लोगों ने पूछा कि आपके पिताजी ने ऐसा किया, तो इवन राहुल गांधी सेड जो हुआ था गलत हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी 16-17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने बहुत सारा अच्छा चीज किया, कुछ गलतियां भी किया होगा। इंदिरा जी ने करीबन 13-14 साल शासन किया, उसमें बहुत सारे अच्छे चीज किए, थोड़ा गलती भी हुआ। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर आप जब काम करते हो, यू समटाइम गेट इन्फ्लुएंस, और ये जरूरी नहीं है कि आप 100 निर्णय ले और उस 100 का 100 निर्णय आपका सही रहे, आपसे भी गलती हो। दिस इज ह्यूमन और ह्यूमन एरर इज पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए धर्म ग्रंथ है। मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, धर्म ग्रंथ है और मैं उसको किसी भी हालत में नष्ट होने नहीं दूंगा। आप कहते हैं द कांग्रेस सेज दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोकतंत्र। मगर सबसे बड़ा नुकसान अगर लोकतंत्र को पहुंचा दिया है तो कांग्रेस ने ही कोटेड नेहरू वांटेड टू कर्ब प्रेस फ्रीडम, Indira Gandhi bought emergency, Rajiv Gandhi want to again curb press freedom, and the classic example of Rahul Gandhi tearing the bill in the Lok Sabha। बोले कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का जिस प्रकार से आलोचना हुआ वहीं पर होगा जब बिल को फाड़ा गया। तो डू यू एग्री where he is giving you examples? राहुल गांधी जी ने बिल कभी पार्लियामेंट में नहीं पाड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल जो क्रिमिनल्स जिनको पर केसेस है, जिनको सेंटेंस 2 साल की सजा हुई, ऐसे लोग पार्लियामेंट में आना चाहिए, ऐसा बिल था। तो उन्होंने फाड़ दिया कि सर बिल नहीं फाड़ा था, एक खाली कागज था, ये कागज था। और अजय और उन्होंने कहा ये दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ दिस बिल, दैट्स व्हाट ही सेड। और उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे बिल को फाड़ देना चाहिए। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने वो बिल को जो पास किया, उसके कारण लालू प्रसाद यादव जो आज हमारे अलायंस में, वो उस समय भी अलायंस में थे, वो पार्लियामेंट में नहीं आ पाए। और बिकॉज ऑफ राहुल गांधी आज जितने लोग के ऊपर क्रिमिनल केसेस है वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। एंड द सेम थिंग वाज यूज्ड अगेंस्ट राहुल गांधी हिमसेल्फ बाय दैट गुजरात कोर्ट where in fact the speaker disqualified him, which is very strange anyway. And देखिए, and Prime Minister says that he will never change the constitution. His own member of parliament, Anant Hegde from Karnataka, he said now openly, why we need 400 seats? Because we want to change the constitution. Not only one, there are 4 senior people. You talk to the ex-governor of Jammu Kashmir, Satyapal Malik. Satyapal Malik. जी. He openly says कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें गलती केंद्र सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर का है, डिफेंस मिनिस्टर का है। आप अगर 40 पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया होता तो ये हादसा नहीं होता। इनफैक्ट इसी को इन्होंने रिवर्स करके अपने अपॉर्चुनिटी में यूज किया है। No, but over here, I'll tell you what this is something which I would like to ask you. And is it perhaps it's a sign of maturity in the Congress that the Congress is not raising this issue at all,
all the attacks which have taken place during Mr. Modi's time as Prime Minister, whether it is Uri, whether it is Pathankot, whether it is Nagrota, whether it is Balakot, the blame responsibility has not been fixed. Till now, we don't really know what happened. See, it has been 5 years, you're right. So I really don't know. The Congress is not raising this issue, but then the Congress has been in power for a long time in Delhi, and they would understand what are the security implications of raising such an issue in public. But don't you think at least people deserve to know what really happened? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ का था, वगैरह वगैरह. आपको लगता नहीं कि ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए? And I have been to Jammu and Kashmir. If I take one tandoor roti wrap to Jammu and Kashmir, I have been checked 5 times. So this question arises कि अगर 300-500 किलो RDX की बात किया जा रहा है तो ये कहाँ से आया? एंड 5 साल हो गए, अभी तक केंद्र सरकार ने देश की जनता को ये नहीं बताया कि किसकी जिम्मेदारी है, कैसे लैप्स हुआ और इसके लिए कौन सा मंत्री राजीनामा देगा, बिकॉज किसी ने राजीनामा नहीं दिया. सर मंत्री की बात छोड़ दीजिए, जो वहां पर, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अलावा वहां अपना RNIW का भी ऑफिस है, वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी ऑफिस है, वहां पे कोई ऑफिशियल भी सस्पेंड नहीं हुआ है सर. बिल्कुल. जबकि वेरी सरप्राइजिंग ये कैसा हो सकता है? नहीं, ये वही कह रहे हैं, वो ये 4 तारीख के बाद के क्वेश्चन है, बहुत सारे चीजों के जवाब इनको देना पड़ेगा. आज क्या है कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया इनके हाथ में है, गवर्नमेंट इनके पास है, और आर्मी का जहां तक प्रश्न है, ये पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे 150 से ज्यादा MPs को क्वेश्चन पूछने के लिए सस्पेंड कर देते. तो ये तो जब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तभी. आपकी सरकार आ रही है क्या? असल में आ रही है कि मतलब? मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 4 तारीख को आप देख लीजिए चुनाव का अभी तक का रुझान जो दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस इज. सर यही दिख रहा था पहले भी मुझको, मैं तो यही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, आपको शायद बुरा लगे, हमें भी लग रहा था. वेरी फ्रैंकली आई वाज आल्सो फीलिंग इट दैट यू वुड विन एटलीस्ट राजस्थान एंड छत्तीसगढ़. चलिए मध्य प्रदेश में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, तो मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आपके पाले में आएगा, लेकिन नहीं आया सर. कहीं वैसा तो नहीं होने वाला इस बार दोबारा? राजस्थान ऑलवेज हैड बीन अ पेंडुलम स्टेट, और वहां पे अगर डिफरेंस देखते तो 1.5% था. छत्तीसगढ़ में आप देखो 2.5% था. मध्य प्रदेश, बिकॉज आई गिव ऑल द क्रेडिट टू शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो लाडली गुड़िया का कैंपेन चलाया, जी जी जी, और इलेक्शन कमीशन के आशीर्वाद के कारण आचार संहिता लगने के बाद उनके अकाउंट को, बहनों और माताओं के अकाउंट में 4-4 हजार गया. इसका बहुत बड़ा असर था. ठीक है, मगर आप देखिए कि उसके बाद इन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का क्या हालत किया है इस चुनाव में. वो लोग सर डॉक्टर रमन सिंह को भूल गए. डॉक्टर रमन सिंह की भी क्या हालत है, कहाँ पर है बेचारे, दिखते नहीं है. तो ये जो सीनियर लीडर्स के साथ हालत किया है, अभी अरविंद केजरीवाल भी ये बोलने लग गए. आप देखिए कि आप रिजल्ट कैसा आता है. जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच राकेश शेट्टी साहब. यू आर सेइंग ऑफ कोर्स दैट द इंडिया अलायंस विल फॉर्म द गवर्नमेंट. आपके मुताबिक, वैसे आपके मुताबिक सर बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं चलते चलते, जरा बता दें. See, they crossing 210 or 15 will be difficult for them. Crossing 210 or 215. Well, at least it's an improvement from 150. But we can see, your campaigns in Mumbai is full of energy and enthusiasm, where all groups are coming together. आप जो भी groups देखे एकदम रोड पे निकल कर आए हैं. We can see the zeal and the spirit of elections there, where Congress is concerned. आज 5 बजे के बाद आज तो प्रचार हमारा समाप्त हो चुका है, मगर मीडिया के द्वारा हम लोगों के संपर्क में. तो जनाब 4 जून को मैं उम्मीद करता हूं कि आप मिठाई जरूर मैं भेजेंगे. आपके दर्शकों को, क्योंकि राजीव जी और प्रदीप जी आपका फॉलोइंग भी बहुत है, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बाहर जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आपका जो भी विचारधारा है, गो आउट एंड वोट, बिकॉज इंडिया ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम कहते हैं, और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55-60% होता है, विच इज वेरी बैड. और मुंबई जैसे शहर में तो मैं कहता हूँ कि हमें वी शुड बी समवेयर इन 95-96%. अरे कहाँ 90% सर, लोग तो छुट्टी पे जा रहे हैं. मालूम पड़ गया है
everybody is gone on holiday. 3 दिन की छुट्टी है, चलो. So I want to appeal to the voters that they जी, should दुरुस्त go out बात. I agree with you. You please listen to what Mr. Shetty says. Everybody go out there and vote. Thank you, Mr. Shetty. you. God Thank bless you. Thank you so much. Thank you very much. Namaskar. Well, people should go out and vote. Let's be very clear. क्योंकि आज की तारीख में मतलब जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ भाई कहाँ हो, अरे भाई छुट्टी पे, क्या के लिए, कहता छुट्टी है ना, मंडे तक छुट्टी है, थैंक यू. अरे यार, दिस इज टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल. लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर योगेश चिले. योगेश चिले साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम माय फेवरेट पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.